નમસ્તે. તમે અગાઉના ભાગમાં સરાસરી વિશે શીખ્યા. હવે સરાસરી કે મધ્યક આમાં આપણે જ્યારે ગણતરી કરીએ ત્યારે માહિતીમાં આપેલા અવલોકનો જોઈએ અને પછી તેની ગણતરી કરીએ. તો હવે આ અવલોકનો વિશે આપણે થોડી વધારે માહિતી મેળવીએ. તો સૌથી પહેલાં આજે આપણે શીખીશું અવલોકનોનો વિસ્તાર. જો કોઈ પણ માહિતીમાં જે અવલોકનો આપેલા છે એટલે કે જે સંખ્યાકીય માહિતી છે તેમાં આપેલા અવલોકનોમાંથી જે સૌથી મોટો અવલોકન હોય તે અને સૌથી નાનો અવલોકન હોય તે, આ બંનેના તફાવતને અવલોકનોનો વિસ્તાર કહેવાય. હવે સૌથી મોટો અવલોકન એટલે આપણે તેને મહત્તમ કિંમત કહીએ અને સૌથી નાનું અવલોકન એટલે આપણે તેને લઘુત્તમ કિંમત કહીએ. મહત્તમ અને લઘુત્તમ અવલોકનોના તફાવતને અવલોકનોનો વિસ્તાર કહેવાય. હવે આપણે અવલોકનોનો વિસ્તાર શોધતા શીખીએ. એક રકમ આપેલી છે તેના પરથી આપણે અવલોકનોનો વિસ્તાર શોધીએ. ગણિતની એક કસોટીમાં વિદ્યાર્થીઓના એક સમૂહે 100માંથી પ્રાપ્ત કરેલ ગુણ 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 અને 75 છે. તો આપેલ અવલોકનોનો વિસ્તાર શોધો. હવે અવલોકનોનો વિસ્તાર શોધવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે અવલોકનો અલગ તારવી લઈએ. તો અવલોકનો અહીં આપણે અલગ લખ્યા. આપણે શીખ્યા તેમ અવલોકનોનો વિસ્તાર એટલે કે મહત્તમ અને લઘુત્તમ અવલોકનોનો તફાવત. તો મહત્તમ અવલોકન, અહીં આપણે રકમ જોઈશું તો અહીંયા આપેલા છે ગુણ. તો આપણે જોઈએ કે આ બધા જ અવલોકનોમાંથી જે વિદ્યાર્થીઓએ ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા છે તેમાં સૌથી વધારે ગુણ કયા છે. તો વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ સૌથી વધુ ગુણ, હવે તમે અવલોકનો જોઈને કહો જોઈએ સૌથી વધારે ગુણ કેટલા છે? શાબાશ, 95. અને વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ સૌથી ઓછા ગુણ કેટલા છે? શાબાશ, 39. એટલે વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલ ગુણ પૈકી આપણે અવલોકનો જોઈને કહી શક્યા કે સૌથી વધારે મેળવેલ ગુણ છે 95 અને સૌથી ઓછા ગુણ છે 39. તો આપણે શોધવાનો છે માહિતીનો વિસ્તાર. તો માહિતીનો વિસ્તાર આપણે અગાઉ શીખ્યા તેમ મહત્તમ અને લઘુત્તમ અવલોકનનો તફાવત. એટલે કે અવલોકનોનો વિસ્તાર બરાબર મહત્તમ અવલોકન છે 95 અને લઘુત્તમ છે 39. તો આ બંનેનો તફાવત એટલે 95 ઓછા 39 ગુણ. હવે આ બંનેની બાદબાકી કરવાથી આપણને અવલોકનોનો વિસ્તાર મળશે. તમે બાદબાકી કરશો ને? શું જવાબ મળે છે? સરસ, 56 ગુણ. તો આપણે કહી શકીએ કે આપેલ અવલોકનોનો વિસ્તાર 56 જેટલો છે. તો અહીં આપણે અવલોકનોનો વિસ્તાર શીખ્યા. હવે આપણે જ્યારે મધ્યક શીખ્યા, મધ્યક અથવા સરાસરી એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે તે મધ્યવર્તી સ્થિતિનું નિર્દેશન કરે છે. પણ માત્ર સરાસરી કે મધ્યક જ મધ્યવર્તી સ્થિતિ દર્શાવે છે એવું નથી. તેના સિવાય પણ અન્ય માપદંડ છે કે જે મધ્યવર્તી સ્થિતિ સૂચવે. હવે આવું જ એક માપદંડ અથવા પ્રતિનિધિ મૂલ્ય જેને આપણે બહુલક કહીએ છીએ તેના વિશે આજે આપણે વધારે શીખીએ. બહુલક એટલે શું? જો શબ્દ છે બહુલક, બહુ એટલે ઘણા બધા, તો એના પરથી આપેલ માહિતીમાં જે અવલોકન સૌથી વધારે વખત કદાચ આવતું હોય તેના વિશે કંઈક હોઈ શકે. તો આપણે બહુલક એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. જો અહીં વિવિધ રંગના ટી શર્ટના વેચાણની માહિતી આપેલી છે. એક દુકાનદાર જે ટી શર્ટ વેચે છે એમાં અલગ અલગ રંગના ટી શર્ટનું વેચાણ કેટલું થયું છે તે અહીં દર્શાવેલું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે દરેક રંગના કેટલા ટી શર્ટ વેચાયા છે તેની સંખ્યા પણ અહીં દર્શાવેલ છે. હવે તમે આ માહિતી પરથી કહી શકશો કે સૌથી વધારે વેચાણ કયા રંગના ટી શર્ટનું છે? સરસ, પીળા રંગના ટી શર્ટનું. પીળા રંગના ટી શર્ટ કેટલા વેચાયા છે? 32. બરાબર ને? જો આ ઉદાહરણમાં હવે જો દુકાનદાર નવો સ્ટોક મંગાવે
એટલે કે હવે ફરીથી એણે નવો સ્ટોક મંગાવવાનો થાય ત્યારે તે કયા રંગના ટી શર્ટ વધારે મંગાવશે? પીળા રંગના, કારણ કે તેનું વેચાણ વધારે છે. કેવી રીતે ખબર પડી? તો આપણે જ્યારે સરખામણી કરી ત્યારે સૌથી વધારે અવલોકનો અથવા તો સૌથી વધારે સંખ્યા આપણને પીળા રંગના ટી શર્ટની મળી. હવે જો આ માહિતીનો આપણે મધ્યક શોધીને વિચારીએ કે તેના પરથી આપણે ઓર્ડર કરીએ તો કંઈ બરાબર આપણને સંખ્યા મળે નહીં. તો આપણે બહુલકનો ઉપયોગ વ્યવહારમાં એવી જગ્યાએ કરીએ છીએ કે જ્યાં આપણને વધારે વખત અથવા વધુ સંખ્યામાં આવતા અવલોકનોની જરૂર હોય. તો હવે આપણે બહુલકની વ્યાખ્યા જોઈએ. બહુલક એટલે આપેલા અવલોકનોના સમૂહમાંથી સૌથી વધારે વખત આવનાર અવલોકનને તે સમૂહનો બહુલક કહેવાય. હવે આપણે પાઠ્યપુસ્તકમાંનો એક પ્રશ્ન લઈએ અને જોઈએ કે તમે બહુલક શોધી શકો છો કે નહીં. અને હવે તમારે નક્કી કરવાનું છે કે આપેલ અવલોકનોનો બહુલક શું મળે. નીચેની સંખ્યાઓનો બહુલક શોધો. હવે તમારે સંખ્યાઓ બરાબર જોવાની છે અને નક્કી કરવાનું છે કે કઈ સંખ્યા સૌથી વધારે વખત આવે છે. તો જે સંખ્યા સૌથી વધારે વખત હશે તે બહુલક ગણાશે. તમે જ્યારે વધારે વખત આવતી સંખ્યા ગણી ત્યારે થોડી મૂંઝવણ થઈ. કેમ થઈ? ચાલો આપણે જોઈએ. જો આપેલ અવલોકનોમાં 2 વધારે વખત દેખાય છે તો આપણે જોઈએ કેટલી વખત 2 છે? 1, 2 અને 3 વખત. પણ તમે જ્યારે ગણતરી કરી તો એક બીજી સંખ્યા પણ એવી છે કે જે 3 વખત દેખાય, એ છે 5. 5 પણ 1, 2 અને 3 વખત છે. એનો અર્થ એ થયો કે આ માહિતીમાં 2 પણ 3 વખત આવે છે અને 5 પણ 3 વખત આવે છે. અને આપણે વ્યાખ્યા પણ જોઈ શકીએ છીએ કે સૌથી વધારે વખત આવનાર અવલોકન. હવે આ બંને અવલોકન 3 વખત આવે છે. તો હવે આપણે સમજીએ કે આપેલ માહિતીનો બહુલક માત્ર એક જ હોય એવું જરૂરી નથી. કેટલીક માહિતી તમને એવી પણ મળશે કે જેના બહુલક 1થી વધારે પણ હોય. એટલે કે બહુલકમાં આવતી સંખ્યા 1 કરતાં વધારે હોઈ શકે. આપણે સરાસરીમાં કે મધ્યકમાં શીખ્યા કે આપણને એક ચોક્કસ જવાબ મળે, પણ બહુલકમાં માહિતીને અનુરૂપ 1 અથવા 1થી વધારે બહુલક પણ હોઈ શકે. એટલે હવે આપણે જવાબ જોઈએ. અહીં માહિતીના બહુલક આપણને મળે છે 2 અને 5, એટલે કે અહીં 2 બહુલક મળ્યા. તો હવે તમે બહુલક વિશે બરાબર સમજ્યા. ઉદાહરણ પણ જોયું કે વ્યવહારમાં આપણે બહુલકનો ઉપયોગ ક્યાં કરીએ છીએ. ટી શર્ટના ઉદાહરણ પરથી હવે તમે સમજ્યા છો. તમારે એવા 2 ઉદાહરણ વિચારવાના છે કે જ્યાં બહુલકનો ઉપયોગ પ્રતિનિધિ મૂલ્ય તરીકે થતો હોય. હવે અત્યારે જે આપણે બહુલક વિશે સમજ્યા અથવા માહિતી જોઈ ત્યાં માહિતીમાં ખૂબ ઓછા અવલોકન હતા, એટલે આપણે સરળતાથી બહુલક શોધી શક્યા. પણ જ્યારે અવલોકનોની સંખ્યા વધારે હોય એટલે કે માહિતી વિસ્તૃત હોય, એ બહુલક શોધવા માટે આપણે શું કરીશું તે સમજીએ. તો હવે આપણે જોઈએ વિસ્તૃત માહિતીનો બહુલક. વિસ્તૃત એટલે કે જે માહિતીમાં અવલોકનોની સંખ્યા વધારે હોય. હવે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જુઓ ઉદાહરણ 5, જેમાં તમને આપેલું છે નીચે ફૂટબોલની એક લીગમાં 2 ટીમના ગોલના તફાવતની માહિતી દર્શાવવામાં આવેલ છે. હવે અહીંયા તમે જોશો કે ઘણા બધા અવલોકન છે. હવે આપણે જો દરેક અવલોકનોને ગણવા બેસીએ તો ખૂબ સમય લાગે. તો આવી જ્યારે માહિતી હશે ત્યારે આપણે જે આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક શીખ્યા છીએ તેનો ઉપયોગ કરીશું. તમે અગાઉના ધોરણમાં આવૃત્તિ વિતરણ કોષ્ટક બનાવતા શીખ્યા હતા. તો એનો ઉપયોગ કરીને આપણે સૌથી વધારે વખત આવતી સંખ્યા કે અવલોકન શોધી શકીએ. જો આ કોષ્ટકમાં ગોલનો તફાવત 2 છે ત્યારે આવૃત્તિ ચિહ્નોની સંખ્યા કેટલી છે? 14 છે, જે બાકી બધા અવલોકનોમાં સૌથી વધારે છે. તો આવૃત્તિ ચિહ્ન
કે આવૃત્તિ કોષ્ટકના ઉપયોગ દ્વારા આપણે વધારે વખત આવતા અવલોકનો ખૂબ સરળતાથી શોધી શકીએ છીએ. આવું આપણે ત્યારે જ કરીશું કે જ્યારે માહિતીમાં આપેલા અવલોકનોની સંખ્યા વધારે હોય. જ્યારે અવલોકનો ઓછા છે ત્યારે તો આપણે બહુલક ખૂબ સરળતાથી શોધી શકીએ છીએ. તો માહિતીનો બહુલક અને વિસ્તૃત માહિતીનો બહુલક શોધતા તમે સરળતાથી શીખ્યા. હવે તમે વિચારીને કહો કે બહુલક એ હંમેશા માહિતીમાં આવતી જ સંખ્યા હોય છે કે કોઈ અન્ય સંખ્યા પણ હોઈ શકે? આપણે વ્યાખ્યા જોઈ કે જે અવલોકન સૌથી વધારે વખત આવે તે માહિતીનો બહુલક. એનો અર્થ શું થયો કે બહુલક એ હંમેશા માહિતીમાં આવતી સંખ્યા જ હોય. બરાબર ને? તો હવે આવતા અંકમાં આપણે મધ્યવર્તી સ્થિતિના એક અન્ય પ્રતિનિધિ રૂપ મૂલ્ય વિશે માહિતી મેળવીશું. विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। हमने यहाँ पर कथनी और करनी इकाई पढ़ी। आपको मज़ा आया होगा। क्या आपने इस प्रकार के उदाहरण देखे हैं कि कुछ कहते कुछ है और करते कुछ है? यहाँ इस इकाई में हमने ऐसे 4 से 5 उदाहरण देखे कि भाई ये नियम तो हमारे लिए नहीं बने हैं, ये नियम तो किसी और के लिए यानी कि दूसरों के लिए है, हम क्यों नियमों का पालन करें। और इस इकाई से हमें यही सीखना है कि नियम पालन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। तो आइए ऐसे कुछ नए जो शब्द हैं इनका अर्थ क्या होता है और इस इकाई में हमें क्या समझना चाहिए, तो ये भी देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द आया था संवारा और उसका अर्थ होता है सजाया, यानी कि फूलों का उपयोग संवारने के लिए सजाने के लिए किया जाता है। तो इस शब्द का अर्थ होगा सजाया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर दादाजी की बात देखी थी कि उनको कहाँ खड़ा रहना था, तो कतार में, और कतार का मतलब होता है पंक्ति। पार्क, कहाँ पर सूचना लिखी हुई थी कि भाई फूल तोड़ना मना है, तो इंग्लिश में उसे पार्क कहा जाता है और हिंदी में कहते हैं उसे बगीचा, बाग या उद्यान भी हम कह सकते हैं। तो यह भी उसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, यानी कि एक शब्द से कई सारे शब्द भी हमें यहाँ पर सीखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक शब्द था अंतर और इसके भी अर्थ होते हैं भिन्न भिन्न, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है भेद या फर्क। वैसे तो अंतर का अर्थ यहाँ पर होता है फर्क या भेद। वर्जित, हमने अभी एक सूत्र देखा कि धूम्रपान वर्जित है, यानी कि मना है, निषेध है, यहाँ पर आप ये नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एक शब्द आपने देखा कंडक्टर। वैसे तो इस शब्द से हम भली भांति परिचित हैं। जब हम बस में बैठकर मुसाफरी करते हैं तब हमें टिकट लेना पड़ता है और हमें जो टिकट देता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर कहते हैं। लेकिन हिंदी में इसके लिए शब्द प्रयोग होता है परिचालक, यानी बस चलाता है उसका एक सहायक परिचालक भी उसके साथ यहाँ पर रहता है, यानी कि कंडक्टर यानी कि परिचालक। इसी प्रकार से शीघ्र, शीघ्र का अर्थ है जल्दी, तुरंत। पोता, हमने इकाई में देखा कि दादाजी अपने साथ अपने पोते को ले गए थे। पोता मतलब पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा यानी कि इंतज़ार, राह देखना। राशि, देखो ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो राशि मतलब क्या? तो इसका अर्थ है रकम, यानी कि जल बिल की जो भी राशि थी वह भरने के लिए दादाजी वहाँ गए थे। आचरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। हमने यहाँ इस इकाई का शीर्षक है कथनी और करनी। करनी यानी कि आचरण, यानी कि अमल में लाना या व्यवहार करना, कि हम कहते कुछ है लेकिन आचरण किस प्रकार से करते हैं, यानी कि जो कहते हैं वैसा ही हमारा व्यवहार, वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए। यह हमें इस इकाई से सीखना भी है।
सदैव यानी कि हमेशा, सदा के लिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर इस इकाई से जुड़े हुए कुछ नए शब्द भी जाने और उन शब्दों की सहायता से अब जब आप इकाई पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आइए, इसी प्रकार से अब आपको गृह कार्य में कुछ काम भी करना है कि धूम्रपान वर्जित है ऐसा कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है, ये आपको सोचना है और अपनी कॉपी में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और हाँ, लिखकर अपने माता पिता को ज़रूर दिखाना है। दूसरा भी एक गृह कार्य आपको यहाँ पर करना है कि भाई लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं, तो आपको ये लिखना है। तीसरा प्रश्न है, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है, ये आपको सोच कर लिखना है। ये 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में ज़रूर लिखने हैं, सोच कर लिखने हैं और अपने माता पिता को ज़रूर दिखाने हैं। यहाँ पर कथनी और करनी इकाई के ज़रिए मूलतः हमें हमारे व्यवहार यानी कि हमारे आचरण में किस प्रकार का बदलाव लाना है या हमें हमेशा किस प्रकार का आचरण या व्यवहार करना चाहिए, ये हमने सीखा। साथ ही साथ भाषा की जो विशेषताएं हैं ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम हिंदी में ये पढ़ रहे हैं और हिंदी में ये सारे व्यवहार यानी कि भाषा का हिंदी में व्यवहार किस प्रकार से करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने रामजी बाई के बारे में यानी कि रामजी बाई का एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। और उदाहरण क्या है? हाँ, मैं पढ़ता हूँ, आपको देखना भी है और सुनना भी है। रामजी बाई ने भैंस खरीद कर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई। रामजी बाई ने भैंस खरीदी थी और भैंस का पालन पोषण करने के साथ साथ भैंस जो दूध देती थी उससे वह हमेशा पैसे कमाते थे, यानी कि उनकी आमदनी की शुरुआत हो गई थी। दूध से घी भी बनाते थे, वो भी बेचते थे। लेकिन रामजी बाई ने भैंस जो गोबर देती थी उसका भी उपयोग किया। और उससे क्या उपयोग किया? हाँ, उसका उपयोग अपने खेत में खाद के रूप में किया कि जिससे उनकी उपज बढ़ गई। और रामजी बाई को तो यहाँ दोहरा फायदा हुआ, है ना, कि दूध के पैसे भी मिले, घी के पैसे भी मिले और गोबर के पैसे भी मिले, यानी कि सीधे पैसे नहीं मिले, लेकिन गोबर के कारण खाद के जो पैसे या खाद का खर्च था वो बच गया और उपज ज़्यादा हो गई। इसलिए ऐसा कहा गया है कि रामजी बाई के लिए क्या कहा गया कि यहाँ पर आम के आम और गुठलियों के दाम, तो इसे कहावत कहा जाता है। हमने कुत्ते की वफादारी इकाई में भी इसके बारे में चर्चा की थी, है ना, याद आया आपको? हाँ, तो ये एक कहावत है, लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। यानी कि परंपरा से अनुभव आधारित जो बात है और रूढ़ हो गई है कि जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसी उक्ति का यानी उसी कहावत का उपयोग होता है। यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, यानी कि 2 गुना फायदा होना, दोहरा लाभ होना। अब आपको कोई कहेगा कि आपको तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हुई आपके साथ, तो आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा, है ना। तो इसे कहावत कहा जाता है। और ऐसी कई सारी कहावतें हैं जो हमारी किताब में भी है और उसके कुछ उदाहरण आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए इन कहावतों के अर्थ जानते हैं। और आज इन कहावतों के अर्थ जानने के बाद आपको इन सारी कहावतों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो आइए ऐसी कुछ कहावतें यहाँ पर देखते हैं। ये तो हमने देख ली, आम के आम गुठलियों के दाम, और इसका अर्थ है दोहरा लाभ होना। दूसरी एक कहावत है, हाँ, सांच को आँच नहीं, और इसका अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इसका अर्थ है सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता।
आइए दूसरी कहावत देखते हैं। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। हमने ये कहावत देखी है ना? कौन सी इकाई में देखी थी? हाँ, कुत्ते की वफादारी में। और इसका अर्थ भी आपको पता चल गया है कि भाई समय निकल जाने पर पछताने से कोई फायदा नहीं। आइए, ऐसी ही एक कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। हमने भैंस देखी है, यहाँ पर रामजी भाई की बात की तब भी हमने भैंस का जिक्र किया, तो भैंस का रंग कैसा होता है? काला। लेकिन यहाँ ये उक्ति किसी अन्य अर्थ के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि बिल्कुल अनपढ़ होना। इसी प्रकार से ये कहावत है, जैसी करनी वैसी बरनी। ये तो आपने सुनी होगी। इसका अर्थ है कर्मों के अनुसार फल मिलना। आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें बढ़ना पड़ता है, यानी कि हमारे कर्म जैसे होंगे उसका वैसा ही फल हमें मिलने वाला है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कई सारी कहावतें हैं जिनका जिक्र हमारी पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तो आपको इन कहावतों के बारे में जानना है और अपनी कॉपी में अर्थ भी लिखने हैं, साथ ही साथ आपको इन कहावत का प्रयोग करके वाक्य भी लिखने हैं। तो आप लिखेंगे, यह भी आपका एक गृह कार्य है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं। हमने कुत्ते की वफादारी इकाई में संज्ञा के 2 प्रकार के बारे में समझा था। कौन कौन से, जरा याद कर लीजिए। हाँ, एक था व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा था जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से आज हम यहाँ पर संज्ञा के एक और प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आइए अब मैं आपको कुछ वाक्य दिखाता हूँ, ये आपको पढ़ने हैं और समझने हैं। देखो, यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। एक शब्द है अहिंसा, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और हमारा रास्ता अहिंसा वाला होना चाहिए। दूसरा वाक्य है, पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन होती है, पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही कठिन लगता है। इसी प्रकार से एक और वाक्य है, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। चौथा वाक्य है, क्षमा वीरों का आभूषण है। और 5वां वाक्य है, महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया। विद्यार्थी मित्रों, इन 5 वाक्यों में रेखांकित शब्द हमें कुछ विशेष संदेश देते हैं और अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, क्षमा, दया, शांति, प्रेम, ये जो सारे शब्द हैं ये नाम नहीं है। हमने आगे सीखा था ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि नाम है। जाति की बात भी नहीं कर रहे। तो ये क्या दर्शाते हैं? इन शब्दों से हमें क्या बोध होता है? जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, ये इसका भाव है। चढ़ाई यानी कि पर्वत पर चढ़ना। लेकिन सीधे रूप से अगर ये बात करना चाहे तो हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ भाव जुड़े हुए हैं, कुछ स्थिति की बात है, कुछ दशा की बात है, कुछ गुण की बात है। पर्वत ऊंचा है तो ये उसका ऊंचाई का गुण है ना? तो ये जो शब्दांश है या रेखांकित किए हुए जो शब्द है हमें किसी भाव, दशा, स्थिति का बोध कराते हैं। ऐसे जो शब्द होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आइए ये भी देखते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, क्षमा, शांति, दया, प्रेम आदि गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। यानी कि सीधे कोई वस्तु नहीं है, लेकिन उसकी कुछ विशेषता है जिसके बारे में हमें इन शब्दों के जरिए पता चलता है और ये हम समझ सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं। उसको देख नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और इसे कहा जाता है गुण, दोष, भाव या दशा। और जो शब्द गुण, दोष, भाव,
दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ही उदाहरण के जरिए भाववाचक संज्ञा के बारे में जानने का प्रयत्न किया। अब आपको अपनी किताब के जरिए ऐसे अन्य शब्द खोजने हैं और अपनी कॉपी में लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। और मैं आपसे आशा रखता हूँ कि आप भी अब अपनी कथनी और करनी एक समान ही रखेंगे। तो मिलते हैं। धन्यवाद।